तेरा कीता जातो नाही, मैनो जोग की तोई। मैं निर्गुण यारे को गुण नाही, आपे तरस पयोई। तरस पया मेरा मत होई, सतगुर सज्जन मिलया। नानक नाम मिलै तां जीवा, तन मन थीवै हरिया। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुनी निधाना। तुम्हारी महिमा बरन न साकों, तू ठाकुर ऊच भगवाना। सुखाओ टल गुर सेविय, ऐनस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाय। होवै सिफत संबंधी, नूर अरसों कुरसों चटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह, माल जन्म जन्म दी कटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह, माल जन्म जन्म दी कटिया। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सोरठ महला पंजवा। हमनी गंत ना गणिया काई, अपना बिरद पछाण। हाथ दे राखे कर अपने, सदा सदा रंग मान। साचा साहिब सद मेहरबान, बंद पाया मेरे सतगुर पूरा। होई सर्व कल्याण, हमरी गंत ना गणिया काई, अपना बिरद पछाण। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल, पतत पावन भगत वचल सतगुरु गरीब नवाज। गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पावन पवित्र हजूरी विच अमृत वेले तो सज रहे दीवान अंदर सतगुरां ने रहमत करके प्रकाशमान होकर के दर्शनां दी दात बख्शिश की है। उपरंत गुरबाणी दे नितनेम आप संगतां ने सरवण किते। सतगुरां दी पवित्र बाणी गुरु नानक साहब पातशाह, गुरु अंगद साहब पातशाह ने जो सानू बख्शिश की है। श्री आसा दी दीवार आप संगतां ने कीर्तन दे रूप दे विच गुरु के कीर्तनियां दे पासों सरवण करके लाहा प्राप्त किते। इस वेले आपां लड़ीवार गुरबाणी दी जो कथा है, शब्द दर शब्द सरवण करते आ रहे हाँ। आओ कुछ समय वास्ते अपना मन का ध्यान गुरु चरणां दे विच टकाइए। ये जो कथा दी दात साडी झोली पई है, ये साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां ने आप इस गुरबाणी दी कथा नूं विख्या नूं आप अपने मुखों महाराज ने उचारिया है। जिवें ढाडी प्रथा गुरु हरगोबिंद पातशाह ने शुरू की, सिखां दे विच जोश भरन वास्ते, उन्होंने बहादुर बनाने वास्ते ढाडियां दी जिहड़ी शुरुआत है वो गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज साहब जियां ने ये सिखां विच प्रचलित करवाई है। इस तरह जो आपां कवीशरी सरवण करते हाँ, ये 10वें पातशाह
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਕਰਵਾਈ। ਜਿਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਵਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਥਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਕਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ। ਆਪ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਹ ਜੋ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਧੰਨ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਰਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਚਨ ਸਰਵਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਈਏ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਆਪਣਾ ਸਫਲਾ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਮਿਲ ਕੇ ਆਖੀਏ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਔਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋਰਠ ਰਾਗਨੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਗਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਖਸਟਮ ਮੇਘ ਰਾਗ ਵੈ ਗਾਵੈ, ਪਾਂਚੋ ਸੰਗ ਬਰੰਗਨ ਲਾਵੈ, ਸੋਰਠ ਗੋਂਡ ਮਲਾਰੀ ਧੁਨੀ, ਪੁਨ ਗਾਵੈ ਆਸਾ ਗੁਨਗੁਨੀ। ਇਹ ਰਾਗਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਬਚਨ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋਰਠ ਰਾਗਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ 1619 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ 619 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ 620 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 619 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਮਰੇ ਗਣਤ ਨਾ ਗਣੀਆਂ ਕਾਏ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਪਛਾਣ। ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਦ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਮਿਜਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮੰਗ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਮੰਗ ਲਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਚਲੋ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਸਤੂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਮੰਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਝੱਟ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਈਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਦ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵਸਤੂ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਖੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਾਝ ਮੱਗ ਮੱਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਧੂਰੀ ਕਰ ਇਸਨਾਨ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਘ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਆਈਦਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਦਾ। ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੀਦੇ।
तो सानू ये दसिया गया है भी माघ के महीने का बड़ा महात्म है, बड़ा फल मिलता। की गल बाकी महीनों का नहीं मिलता? बाकी महीनों में गुरबाणी पढ़न का फल नहीं है। जे बाकी महीने गुरबाणी पढ़ांगे तो सतगुरु की बख्शिश नहीं करनगे। एक साडे मन में भरम पै गया भी शायद माघ का ही इहो जिहा महीना है जदों बरकत प्राप्त होनी है, बाद में तो होनी नहीं है। गुरु अर्जन देव पातशाह कहन लगे साचा साहिब साध मेहरबान। परमात्मा ये नहीं कहता भी मैं माघ के महीने ही तेरे ते कृपा करांगा या मैं इस दिन तेरे ते कृपा करांगा, नहीं। वो तो सदा ही मेहरबान है, सदा ही मेहरां करदा है। ना वो दिन वेखदा, ना रात वेखदा, ना सवेर वेखदा, ना शाम वेखदा है। उहदी मेहर लैण वास्ते सिखा तू तैयार हो, वो तो सदा ही मेहर करदा है। किहड़ी मेहर करदा? महाराज फरमाउंदे हन हमने गणत ना गणिया काए अपना बिरद पछाण। ये है भी वो अपने बिरद की पछाण करदा। बिरद परमात्मा का ये है पतत पावन। पतत तो भाव हुंदा डिगे हुए, जिहड़े गिरे हुए ने जीवन करके, जिहड़े पापी ने, जिन्हां ने हमेशा कुकर्म ही किया है, पाप कर्म कीते ने, वो परमात्मा इहो जिहा है पापियां नूं डिगिया होयां नूं वो पवित्र कर दिंदा है। ऐसी अपनी वो संगत बख्शिश करता है। मनुख का सुभाव इहो जिहा है, जे असी किसी चुगल कोल बैठांगे असी भी चुगल बन जावांगे, निंदक कोल बैठांगे असी भी निंदक बन जावांगे। किसी ने साडे कोल एक चुगली कीती है, असी उहदे कोल दो करांगे, तो फिर चुगलियां दी इहो जी लंबी कतार शुरू हो गई भी अंत ही नहीं आया। सतगुरु पातशाह कहन लगे मनुख का सुभाव ये है, चुगली वाले बंदे कोल बैठदा चुगल बन जाता है। जे कोई निंदिया करता है तो उहदे कोल आप भी निंदिया करके निंदक बन जाता है। पापी दे कोल बैठ के आप भी पाप करता तो पापी बन जाता है। परमात्मा इहो जिहा है, वो निंदक नूं भी अपनी संगत दे के, पापी नूं भी अपनी संगत दे के वो पवित्र कर लैंदा, ना कि आप उहो जिहा हो जाता है। आप नहीं उन्हां वर्गा हुंदा भी ये पापी है तो मैं भी पापी बन जावां। असीं दुश्मन दे दुश्मन बन जाते। जे कोई पाप दुख दिंदा तो उन्होंने दुख देने वाले आप भी उहो जिहे बन जाते। परमात्मा का सुभाव ये है भी अपना बिरद पछाण, वो अपने बिरद की पछाण करदा भी मैं की हाँ तो ये की है और मैं ये नाल की करना है। इस गल नूं मुख रखदियां होया वो पतित पावन है, डिगिया होया नूं भी चुकण वाला है, गिरिया होया दी वो मदद करन वाला है, पापियां नूं वो पवित्र कर देने वाला, ना कि उन्हां वल वेख के वो पापी नहीं हुंदा है। सतगुरु पातशाह कहन लगे वो ऐसे अपने बिरद दी वो पछाण करदा है। बेअंत साखियां गुरु काल गुरु जीवन में आउंदियां, जिवें सज्जन ठग है, वेखण नूं ते महात्मा लगदा पर है पापी। गुरु नानक देव पातशाह दे कोल गए, उहदे वर्गे ठग जां पापी नहीं बने, बल्कि उन्होंने भी सच्चा साधु बना दिता है। इस तरह भावें शाह सुहागन वर्गे दुनिया के सामने पखंड कर दे, पर महाराज उहदे कोल गए, उहदे वर्गे आप पखंडी नहीं बने, बल्कि उन्होंने सच्चा परमात्मा की प्राप्ति वाला बना दिता। महाराज गए वली कंधारी दे कोल, मन दे विच हंकार है, ईरखा दूजे धर्मां दे प्रति, दूजे लोकां दे प्रति, उहदे कोल जाके आप नहीं उहो जिहा बने, सगों उन्होंने दयावान एक साधु बना दिता। महाराज कहन लगे अपना बिरद पछाण, परमात्मा की अपने बिरद नूं आप जानते हैं। मेरा बिरद ये है कि पापियां नूं पवित्र करना है, डिगिया होयां नूं चुकना है। ऐसे बिरद की पछाण करके हमारी गणत ना गणिया काई। उस परमात्मा ने साडी गणत जिहड़ियां गिनतियां ने ना गलतियां, उन्हां गलतियां की उन्हें गिनती की नहीं है। जे परमात्मा गिनती मिनती में आ जाए ना भी फलाने बंदे ने इन्ने पाप किए, फलाने ने इन्ने दुख वाले कर्म किए, जे गिनतियां विच परमात्मा पै जाए तो असीं छुट ही नहीं सकते हैं। जदों वो माफ़ करता है वो फिर गिनतियां नूं परे कर दिंदा है, गिनतियां दी विचार विच नहीं पैंदा है। सतगुरु बख्शिश करदे लेखा कत है ना छूटी है, खिन खिन भूलन हार, बख्शन हार बख्श लै, नानक पारे उतार। वो ऐसा परमात्मा है कि फिर गिनतियां नहीं गिनदा भी किन्ने की कीता है, जदों माफ़ करदा तो उस वेले कर दिंदा है। आपां साखी पढ़ते हाँ धन 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां दे समय दी, जदों महाराज साहब जियां ने
आनंदपुर साहब नूं छड्डिया, सरसा नदी तो पार होए, चमकौर दा जंग लड़िया ते महाराज मालवे वे चले गए। ये साखी आपां कई बारी सरवण कीती है। उस वेले कुछ जिहड़े सरकार दे नाल रसूख रखण वाले, मेल मिलाप रखण वाले लोग आके कहण लगे, महाराज जी तुहाडा सरकार नाल मेल करवा दईए, संधि करवा दईए। तो ये सरकारां नाल वैर कदे पुगदे नहीं हुंदे। तो उस वेले उन्होंने कई बचन किए। तो महाराज ने आख्या, कहन लगे साडे पिता नूं शहीद किया, साडे साहिबजादे साडे बच्चियां नूं शहीद किया, साडे सिखां नूं शहीद किया, साडा आनंदपुर साहब जिहड़ा किला सी उस नूं ढाया गया। इन्ने काम समय दी सरकार ने कीते। उदों ना तुसीं मेल मिलाप कराया, अज तुहानूं चेता आ गया मिलाप कराउण दा। सानूं ये तुहाडी योजना, ये जिहड़ी दित्ती होई सलाह बिल्कुल मंजूर नहीं। महाराज फिर असीं तुहाडे नाल रह नहीं सकते, क्योंकि सरकार ने सानूं नौकरियां दे दित्तियां, जगीरां दित्तियां होईयां, चौधरताइयां दित्तियां, पिंडां दीयां नंबरदार बनाया होया। तुहाडे नाल रवांगे तो सरकार फिर ये चीज़ां वापस लै लवेगी। तो बादशाह कहन लगे फिर वस्तुआं रख लो भाई, सानूं छड्ड दिओ। कहन लगे ठीक है, कागज़ उपर लिखिया गया तुसीं साडे गुरु नहीं, असीं तुहाडे सिख नहीं। पता नहीं जिहड़े लोगों ने कागज़ ते लिखिया उन्होंने होर किन्नियां गल्लां कहीआं होणगीआं जुबानी, जिहड़े लिख के दे आए भी साडे तुसीं गुरु ही नहीं रहे ते असीं तुहाडे सेवक नहीं रहे। उन्होंने जुबानी किन्ने मिहणे दिते होणगे, किन्नियां उस दुख दे समय विच किहो जिहियां गल्लां कहीआं होणगीआं। पर जदों समा अगे लंघिया, भाई महा सिंह जियां ने महान जंग किया खजराने की ढाब ते, ते सतगुरु उहदी सेवा वेख के खुश होए। कहन लगे महा सिंह जी मंग लो की चाहिदा, जो मंगोगे वो दे देवांगे। ते भाई महा सिंह ने बेनती करके आख्या, महाराज ये बदावा आप जी पाड़ो, बस मैनू इहदे तो बिना कुछ नहीं चाहिदा। जदों ये बचन सुनिया तो सतगुरां ने एक बारी भी नहीं विचारिया, गिनती नहीं की है भी साडे साहिबजादे शहीद होए, साडे पिता जी शहीद हो गए, साडा आनंदपुर साहब ढा दिता गया। इन्ना कुछ समय की सरकार ने किया। जिहड़े लोग सरकार का पक्ष करते वो साडे की लगते हैं, वो तो साडे भी दुश्मन ही होए। जां ये नहीं विचारिया महाराज जी भी उन्होंने लोगों ने सानू इन्ने मिहणे दिते, इहो जिहियां गल्लां करके ये गल कह दी, महाराज तुसीं साडे गुरु ही नहीं, असीं तुहाडे सेवक नहीं। इन्हां गल्लां दी गिनती नहीं की महाराज ने। उन्होंने अपना बिरद वेखिया, साडा बिरद है भुल्ले होयां नूं बख्श देना, गुनाहगारां नूं बख्श के मुआफ कर देना, ये साडा बिरद है। अते अपने सिख दा मूँह मंगिया होया बचन उहनूं देना, ये भी साडा बिरद है। जो सिख मंगे उस सिख नूं दे देना है। साडे सिख ने अज बिदावा पाड़न की गल कीती है, असीं गिणती मिणती विच नहीं पवांगे किन्ने सानू की आख्या जां किन्ने साडा की नुकसान कीता, नहीं। उस वेले सिख का बचन मनिया, झाटी बिदावा पाड़ के टूटी गंढ नहार गोपाल बन गए। टुटिया उस वेले जोड़िया। गुरु अर्जन देव पातशाह कहन लगे, ऐ परमात्मा ये तेरा ही बिरद है भी तू इस बिरद नूं जानदा भी मैं पापियां नूं माफ़ करन वाला, डिगे होया नूं चुकन वाला हाँ। ये बिरद जान के हमरी गणत ना गणिया काई, साडे गुनाहां दी गिनती ना कर भी मेरे इन्ने मैं गुनाह किते, इन्ने पाप किते। जे गिनती विच पै जावेगा असीं ते छुट ही नहीं सकांगे, साडे ते रहमत कर। फिर परमात्मा ने रहमत की कीती, हमरी गणत ना गणिया काई, साडी गिनती साडियां गलतियां उन्हें गिणिया ही नहीं भी इस बंदे ने 10 गलतियां कीतियां कि 100 गलती की है कि 1000 गलती की है, नहीं। सारियां गलतियां नूं अखों परोखे करके परे करके झाटी लैन मार के मटा के सारियां ही माफ़ कर दित्तियां। ऐसा परमात्मा का बिरद है, वो साडियां गिनतियां नूं गलतियां नूं गिणदा नहीं है। ऐसा उहदा स्वरूप है, वो जानदा भी मेरा काम ही पापियां नूं पवित्र करना है। ना निंदक दे नाल वो निंदक बनदा है, ना चुगल दे नाल वो चुगल बनदा है, ना पापी दे नाल वो पापी बनदा है। चुगलां नूं, निंदकां नूं, पापियां नूं, दुखियां नूं अपना बिरद जान के उन्होंने भी माफ़ करके पवित्र करके अपने नाल मिला लेंदा है। हाथ राखे कर अपने सदा सदा रंग मान, बख्शिश कर दे जिन्होंने उसने अपना मेहर भरिया हाथ दे के रखिया है। परमात्मा का हाथ ही मेहर वाला है ना, जिहदे सिर ते हाथ आ जावे गुरु का
तो फिर वो मेरा ही मेरा हो जांदियां, बख्शिशां ही बख्शिशां हो जांदियां। जिवें सतगुरां ने बचित्र सिंह भाई के सिर दे मेहर दा हथ रखिया तो हाथी ना लड़िया गुरु का सिख, इस तरह महाराज जी के सिर दे उपर मेहर दा हथ रख लैन, उन्हां निके मोटियां नूं हाथियां दे नाल लड़ाउण दी समर्था रखदे पातशाह जी। महाराज कहन लगे हाथ दे राखे कर अपने, अपने जान के सेवक जान के अपने सेवकां दे सिर दे उपर मेहर भरिया हथ रख करके बख्शिशां कर देंदे। जिवें छज्जू झीवर होया ना पंजोखरा साहब की धरती ते, महाराज ने उसका लाल चंद का हंकार तोड़न वास्ते ब्राह्मण का पंडित का छज्जू के सिर ते मेहर भरिया हथ रखिया, बख्शिशां ही कर दित्तियां। हाथ दे राखे कर अपने, जिन्हां ते हथ रख देंदे उन्होंने अपना ही बना लेंदे। वो छज्जू झीवर गुरु घर का प्रचारक बन गया, सेवादार बन गया, करनाटक की धरती ते जाके गुरु घर की सिक्खी का प्रचार करता पिया। इस तरह महाराज जी के सिर ते मेहर का हथ रखते भाई उसनों अपना बनाउंदे हन। साचा साहिब सद मेहरबान, सदा सदा रंग मान। महाराज कहन लगे सदा वास्ते जो रहन वाला परमात्मा है ਉਹਦੇ रंग कहिए आनंद ਨੂੰ गुरमुख भोगते ने। सदा सदा वास्ते परमात्मा का आनंद उन्हां गुरमुखां ਨੂੰ प्राप्त ਹੁੰਦਾ है। वो दुख दे विच सुख दे विच ਉਹਦੇ रंग विच रंगे रहंदे। जे दुख देहे तां तुझै आराधी, सुख भी तुझै ध्याई, ऐसी दात उन्हां ਨੂੰ प्राप्त ਹੁੰਦੀ है। साचा साहिब सद मेहरबान, ਜਿਹੜਾ सच्चा साहिब है ना परमात्मा, वो भाई सदा ही मेहरबान है। भावें दिन है तो भावें रात है, भावें सवेर है तो भावें शाम है। परमात्मा के दफ्तर का कोई समा नहीं है भी इस वेले बंद है तो इस वेले वो ठीक नहीं है। हर वेले उसका दफ्तर उसकी बख्शिश खुली हुई है। हर वेले वो मेहर के घर में रहिंदा है। कदे समा इहो जिहा आया ही नहीं भी वो परमात्मा कदे मेहरबान ना होवे। कई बारी आपां बचन सुनते ना भी सतगुरु सिख की सेवा वेख के वो बड़े मेहरबान होए, मेहर के घर में आए। गुरु तो हर वेले ही मेहर के घर में रहिंदा है, हर वेले ही बख्शिश करने वास्ते तैयार रहिंदा है। बचन पढ़ते हैं सब निधान 10 अष्ट सिधान ठाकुर कर तल धरिया। वो परमात्मा जो गुरु रूप है उसने सारियां बख्शिशां अपने हाथ की तली के उपर रखियां हुई। क्यों? क्योंकि साडा सिख मंग लवे, प्यारा मंग लवे तो मेहरबानगी असी झट ही उहदे ते कर दईए, ऐसी बख्शिश वो करदा है। साचा साहिब सद मेहरबान, सदा वास्ते उहदियां मेहरां हुंदियां हन। बंद पाया मेरे सतगुर पूरा होई सर्व कल्याण। सतगुरां ने बंद पाया, नाम दा ये बंद कहिए बन्ना पा दिता है। परमात्मा ने नाम दा बन्ना सानू बख्शिश कर दिता है उन्हां गुरमुखां दे उपर जिहड़े ओहदे बने ने, जिन्हां ते मेहर हुंदी है ना। किसी नूं कोई दुनिया की नौकरी मिल जाए, कोई डिग्री मिल जाए, कोई दुनिया की तरक्की मिल जाए, आप आखदे बड़ियां वड्डियां भागां वाला वधाई होवे, वधाई होवे। असल विच भागां वाला वो है, वधाई का पात्र गुरमुखो वो है जिन्होंने सतगुरां ने नाम का बन्ना बख्शिश किया है, जिन्होंने नाम के नाल जोड़िया है ना, वो है भाई वड्डियां भागां वाला। ये दुनिया के पदार्थ नासवंत आउंदे जांदे रहिंदे, पर नाम जिहड़ा है सारियां नूं प्राप्त नहीं हुंदा है। सतगुरु पातशाह कहन लगे बंद पाया मेरे सतगुर पूरा है। और गुरु पूरा होना चाहिए, गुरु वकारी नहीं होना चाहिए। जिहड़ा गुरु आप कुकर्मी है, आप लोभी है, आप दुष्टता ही करता है, वो चेले भी तो उहो जिहे होणगे ना। गुरु जिन्ना का अंधला चेले जान छड़प, जिहड़ा गुरु आप ना वो दूजे नूं की राह विखावेगा। इत्थे बचन आया है बंद पाया मेरे सतगुर पूरा है। जिहड़ा पूरा गुरु है जदों ओदी शरण विच प्राप्त होए तो सतगुरां ने फिर बंद कहिए बन्ना पाया, नाम दा बन्ना बख्शिश किया, नाम दियां दातां बख्शिश कीतियां। ऐसे सतगुरु समर्थ हन, फिर बख्शदे हन। बंद पाया मेरे सतगुर पूरा, सतगुरु बख्शिश करदे। असीं तो रुड़े जा रहे सी संसार दियां कमां दे विच, विकारां दे विच, कदे काम विच, कदे क्रोध विच, कदे लोभ विच, कदे मोह विच, कदे हंकार दे विच।
ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੁੜੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਪਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਰੁੜੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਰੁੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੁੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਜੀ गुरु का सिख है, धन 10वें पातशाह जियां दा, छुट्टी लैके अपने घर नूं गया, महाराज विआह कारज ने घरे जाना है। सतगुरु कहन लगे भाई जोगा जी जदों बुलावांगे ना उदों झाटी सारे काम छड्ड के साडे वल तुर के आ जाओ। ते भाई जोगा जी अपने नगर चले गए, विआह कारज करवाए। सतगुरु परख करनी चाहुंदे भी सिख किन्ना कु साडे बचन मनदा है। जदों महाराज ने नाम पूछया ना, तेरा नाम की है? कहन लगा महाराज मेरा नाम जोगा है। ते सतगुरु सुभावक ही कहन लगे, कहंदे किहदे जोगा, फिर तू ये भी दस दे। ते भाई जोगे ने झाटी आख्या, कहन लगा महाराज मैं तुहाडे जोगा। ते सतगुरु कहन लगे जे तू साडे जोगा ते असीं तेरे जोगे फिर होए। ये बचन कहना ते सौखा कह दिता। महाराज ने सिख नूं भेजिया भी परख करिए वाकई साडे जोगा है कि केवल गल्लां ही करदा। सिख नूं समझाया इन्हें 4 लावां लैणियां, जदों 2 लावां लवे साडा सुनेहा दे कन्न विच दे दई, वेखीए किन्ना को बचन मनदा। भाई जोगा जियां दा विआह हुंदा पिया, जदों 2 लावां होईयां ते सिख ने कन्न विच आके आख्या, कहन लगा महाराज ने तैनूं हुणे ही याद कीता। सतगुरां ने आख्या सुनेहा मिलदियां डेर ना लाई, झाटी चल पई साडे वल। जदों ये बचन सुनिया मन विच आया, महाराज दे कोल सिख ते बड़े बड़े वड्डे बैठे, भाई धर्म सिंह वर्गे, भाई दया सिंह वर्गे, भाई बचित्र सिंह वर्गे, बड़े बड़े गुणी ज्ञानी भाई नंद लाल वर्गे बैठे, पर मेरे नाल कोई खास ही काम पै गया जिहड़ा मेरे बिना नहीं सरिया महाराज दा। मैनू याद कीता, झाटी चल पिया उस वेले सब कुछ छड्ड के। रिश्तेदारां ने आख्या 2 लावां रह गईयां, लैला कहन लगा लावां दे बाद विच भी लईयां जा सकदियां, पर गुरु की खुशी नहीं जे दोबारा लई जानी जे बचन ना मन्निया ते। छड्ड के चल पिया। चलदा चलदा जदों आ गया ना हुशियारपुर की धरती ते फिर सतगुरां ने परख पा दी, परख लईए भी किन्ना कू पक्का ते किन्ना कू कच्चा। उत्थे वेसवा के दरवाजे दीयां पौड़ियां तां चुबारे दीयां चढ़दा दंदा मन बेईमान कुकर्मी हो गया। ते सतगुरु पातशाह महाराज अगे डंडा लैके खड़ गए उस दरवाजे के अगे जिहड़े दरवाजे तो अंदर जाना है। जदों वेखदा पहरेदार नूं खलोतियां थल्ले आ जांदा, दोबारा फिर जांदा अगों पहरेदार फिर इहदे वल घूर के वेखदा। जदों 2-3 चक्कर लाए पहरेदार ने कह ही दिता, वो कहन लगा वेखण नूं ते सिख लगदा है, ये किधर नरकां दीयां पौड़ियां चढ़दा पिया, सिख नूं इहो जिहा कर्म नहीं करना चाहिदा। जदों ये बचन सुने तो उस वेले मन जागिया, लानत पाई अपने मन नूं, ये की करदा पिया। दौड़िया दौड़िया सतगुरां दे दरबार विच पहुंचिया, आनंदपुर साहब की धरती ते पातशाह जियां नूं नमस्कार कीती। महाराज दे नेत्रां दे विच उस वेले उनींदरा है। सतगुरां दा चेहरा वेख के आखन लगा, महाराज आप जी दी अखां विच इस तरह लगदा जिवें नींद आउंदी पई है, की गल रात नूं आप जियां ने आराम नहीं कीता, आप जी नूं नींद नहीं आई रात? ते सतगुरां ने सुभावक ही आख्या, कहन लगे भाई जोगिया जे असीं सौ जांदे ना ते तू नरकां दे टोए विच डिग पैना सी, रुड़ जाना सी तू विकारां दे विच। असीं अपने सिख नूं रुड़न नहीं देना, असीं सारी रात जाग के तेरा पहरा दिता है, पर पहरा भी वेसवा के दरवाजे ते खड़ के दिता। भाई जोगिया किते होर खड़ा कर लैंदा, जरूरी सानू उत्थे खड़ा करना सी। जदों ये बचन सुने महाराज जियां दे, झाटी भज के चरण फड़ लै भाई जोगा जियां ने। महाराज कहन लगे वो जिहड़ा परमात्मा बंद पाया मेरे सतगुर पूरा है, साडे वल्लों ते रुड़न की कोई घाट नहीं, असीं ते झाटी रुड़ना चाहुंदे हां, तिलकना झाटी चाहुंदे हां। सानू वकार माड़ा जिहा मौका देवे, लोभ काम क्रोध माड़ा जिहा मौका मिले, झाटी रुड़न वास्ते तैयार हां, जिवें भाई जोगा रुड़ चलिया सी। ते सतगुरां ने बंद पा लिया, रोक लिया, रुड़े जांदे सिख नूं नहीं रुड़न देवांगे, क्योंकि तू साडा सिख बन गया है। इस तरह जिहड़े गुरु के सिख बन जाते, महाराज कहन लगे सतगुरु उन्होंने फिर रुड़न नहीं देंदे, इस संसार के विकारां दे विच रुड़न उन्होंने बचा लेंदे, ऐसी दात बख्शिश करते हैं। फिर फरमाउंदे हन, बंद पाया मेरे सतगुर पूरा। ऐसे समर्थ ते पूरे ने गुरमुखो, इत्थे बंद नाम संतोख दा है। सतगुरु संतोख दा बंधन भी पा दिंदे,
दुनिया के लोग तृष्णा विच भजे फिरदे, कोट जोड़े लाख करोड़े मन ना हो रे, परे परे ही को लुझी है। ये तृष्णा नहीं बुझदी, लख तो करोड़ अरब खरब नील पद्मा संख, पता नहीं किन्नी कू माया चाहुंदा है। पर सतगुरु इहो जिहा संतोख दा बख्शिश पा दिंदे, मन दे विच इहो जी संतोख बख्शिश कर दिंदे कि पदार्थां दा लोभ लालच ही खत्म हो जाता है। बंध पाया मेरे सतगुर पूरा, पूरिया गुरां ने संतोख का बंधन पा दिता। पर गुरमुखो इत्थे बचन समझण वाला ये है भी गुरु पूरा होना चाहिए। जे पूरा गुरु है तो गुरु संतोखी है, तो जो गुरु ही लालची होवे भी मेरा डेरा वड्डा बने, मेरी गोलक वड्डी बन जावे, मेरी जान पछाण बहुती होवे, मेरे कोल धन पदार्थ बहुते हीरे मोती होण, जे गुरु ही लोभी हो जावे तो सिख नूं संतोखी कित्थों बनावेगा। गुरु पूरा ही संतोखी है, तो पूरिया गुरां दा सिख तां संतोखी हो सकता है। बंध पाया मेरे सतगुर पूरा, पूरे सतगुरु जी संतोख का बंधन पा देंदे, सिख नूं संतोखी बना देंदे, ऐसियां बख्शिशां करदे हन। होई सर्ब कल्याण, सतगुरु जी सारे तरीकियां करके कल्याण कहिए खुशी बख्शिश कर दे, कल्याण कहिए मुक्ति की दात बख्शिश कर दे, सारे तरीकियां दी ऐसी दात बख्शदे हन। जियो पाए पिंड जिन साजिया, दिता पैनन खान। सतगुरां ने तेरे ते रहमतां की कीतियां, तू ते ये गिनदा ना भी मैनू प्रशादा देता बस ठीक है, मैनू कपड़ा देता ठीक है, पर उन्हें ते तैनू बहुत कुछ दिता है। की दिता है? जियो पाए पिंड जिन साजिया, जिस परमात्मा ने माता के गर्भ के अंदर तेरा शरीर साजिया बनाया, हाथ पैर नक मूँह कन सब कुछ बना के फिर तेरे इस शरीर दे विच उन्हें आत्मा पाई है, जियो पाया है, ताई तेरा मांस का जिहड़ा टुकड़ा है ताई तुरदा फिरदा है ना, ताई आपां भजे फिरदे है तो मांस ही ना, होर इहदे विच की है। महाराज कहन लगे जियो पाए, जीव आत्मा पाके पिंड जिन साजिया, जिन्हें तेरा इन्ना सोहना शरीर बना दिता, किन्ना सोहना उत्ते चमड़े का लेप ला दिता है, तेरी चमड़ी गोरी कर दी, नैन नक्श सोहने बना दिते, दुनिया तेनू वेखदी पई है। रब ना करे कि चमड़ी का लेप उतरों लै जावे, तेरे वाले कोई वेखे ना, एडा गंदा तेरा शरीर दिसेगा, मक्खियां उहदे उपर बैठिया करनगियां। महाराज कहन लगे परमात्मा की बख्शिश है भाई प्यारिया, तैनू सोहना शरीर दे के विच आत्मा पाई है, फिर दिता पहनन खान, तैनू छकन वास्ते भोजन, पहनन वास्ते सोहने वस्त्र उसने बख्शिश किते। ते वस्त्रां दा काम की है? कपड़े का काम है शरीर ढकना, तो पर जे कपड़ा ही असीं वो पा लीए जिहदे विचों शरीर नंगा दिसे तो फिर फायदा तो कोई ना होया। पहला कपड़ा पाया जाता सी शरीर ढकन वास्ते, हुण पाया जाता शरीर नंगा विखाउण वास्ते, नंगा होकर दुनिया नूं दिसां सोहना लगांगा। ये किस तरह का समा बनता जा रहा है, जे किधर नूं असीं चल पे हाँ। महाराज बख्शिश करना उस परमात्मा ने दिता पहनन खान, जियो पिंड जिसने तैनू दिता है, अते फिर तैनू उसने खान वास्ते भोजन दिता है। सतगुरु महाराज बख्शिश कर दे, कहन लगे जिन दिए तिसे न जानी, पशु हों कर जानी। जिन्हें इन्नियां दातां दित्तियां बंदा उन्होंने नहीं जानता भी मैनू रब ने दित्तियां, कहता मैं कमा के लिया। किसी ने सोहने कपड़े पाए ना, या किसी ने सोहना भोजन छकिया, ये नहीं जानता भी रब की दात मैनू मिली है। कहन लगा मैं कमाई की तो तां खरीदे कपड़े, मैं कमाई की तो तां मैं महंगा भोजन खादा, जे मेरे को कमाई ना हो तो कितों भोजन खावांगा, महंगा कपड़ा कितों पावांगा। भाई प्यारिया कमाई भी तो तां कीती है ना जे उन्हें तेरे तो करवाई है, उद्यम दिता। तो जे रब ना करे तेनू रोग ही इहो जिहा लग जाए, ਜਾਂ रोजगार ही तेनू ना मिले तो फिर कितों खरीद के पा लवेंगा, मंगदा रहेगा ना दुनिया के कोलों। ये सारिया दातां ओदियां वो बख्शिश आप करता है। अपने दास की आप पैज राखी, नानक सद कुर्बान। नानक दे महाराज दे पंजवें स्वरूप गुरु अर्जन देव पातशाह फरमाउंदे, कहन लगे अपने दासां दी वो पैज इज्जत आप रखदा है। सिख की इज्जत गुरु की इज्जत है, भगतां की इज्जत गुरमुखां नाम जपण वाले साधुओं की इज्जत परमात्मा की इज्जत है। वो अपनी इज्जत जान के अपने भगतां की आप रखिया करता है। हर जुग जुग भगतों पाया पैज रखदा आया,
राम राजे हरेक युग में उन्हें भगतां की इज्जत नूं रखिया है। सतगुरु कहन लगे अपने दास की आप पैज राखी। गुरु ऐसा समर्थ है अपने सेवकां की आप इज्जत रखदा। नानक सद कुर्बान, ऐसे गुरु तो कुर्बान हो जाइए, सदके हो जाइए जिस गुरु ने ऐसियां दातां सानू बख्शिश कीतियां। गुरु रहमत करे गुरमुखो, विचार उपदेश साडे हिरदे वसे ताकि साडा भला होवे। सतगुरु रहमत करन, मनुखा जन्म सफला हो जावे। साडियां गलतियां गिणतियां दी महाराज ना विचार करन, इन्हां गिणतियां तो परे हो के सानू माफ़ कर देन साडे गुनाहां नूं। ये सतगुरां दे चरनां विच अरदास करिए। जो सज्जना सीसड़ियां जो होवे साहिब सिओ मेल। जियो पाए पिंड जिन साजिया दिता पैनन खान। अपने दास की आप पैज राखी नानक सद कुर्बान। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप संगतां दे चरनां विच बेनती है